बांटेंगे। वेलकम बैक। वी आर डिस्कसिंग द स्टिकिंग पॉइंट्स ऑफ द लोकपाल बिल और इसी मुद्दे पर बहस करते हुए हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं। मैं यहाँ पर एक कॉलर लेना चाहूंगी। जी आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हरबंस सिद्धू फ्रॉम पटियाला जी। हाँ जी, तुसी की कहना चाहोगे? मैं एक कहना चाह रहा ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ जी। आई एम जस्ट कॉलिंग अबाउट पंजाब स्टेट जी। पंजाब च लोकपाल है जी। लेकिन ਉਹਦੇ पास टूल्स नहीं है। ओके। हाउ इट इज पॉसिबल कि ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕ ਲੋਗੇ? लोकपाल है मगर ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੂਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ठीक है। आईजी साहब बैठे ने ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣ ਲਈ। जी। मिस्टर बजाज, क्या आप इनके सवाल का जवाब देंगे? Well, he is referring to the Lokayukt. Yeah. And the fact about the staff and but my point was totally different, that it's not the powers that you give to this institution. जी। The question is that you look at what is being envisaged. What is being envisaged is that all government employees, semi-government employees from the states and from the central government, which would run into crores, will be under the jurisdiction of this institution. And to be able to cope with that kind of work, will probably require, somebody is estimated, I was reading somewhere, that 40,000 people. 40,000 people getting into one institution which is supposed to be totally independent of the government, and who is going to supervise the Lokpal and the nuisance value of all these 40,000 people? They are not going to come from a different planet. Right. If you find that people who are sitting in different government departments now are corrupt and they're doing, what makes you sure that these 40,000 people are not going to be doing the same thing? Absolutely. So these are very, very areas of great concern. Right. Harpreet, do you agree with Mr. Bajaj? Completely, I agree with him completely. And but just to answer what the caller was saying, कि IG साहब ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਚਪੜਾਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, I'm quite sure IG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ। Imagine this, the system that we are envisaging is, there are now 3 levels. First, there will be an investigative body, either Right. the Lokpal ka apna investigator or the CBI. They will come to a determination after hearing everybody, ये बंदा corrupt है कि नहीं है. जी। Then it goes to the Lokpal. Right. That 9-member body says ये corrupt है कि नहीं है. They also say हाँ जी corrupt है. Then it goes to a special court, and that special court will again hear every side. Lawyers will be present for the 3rd time, and they'll come to a decision ये corrupt है कि नहीं. And then obviously after that appeals and High Court appeals and Supreme Court appeals and all that. Right now we have a Prevention of Corruption Act. The system says, yes, if there is somebody who's corrupt, file a complaint against him, take him to the special court, he can be prosecuted and everything. Alright, so it's not a very effective system. अभी जो कानून है वो इम्प्लीमेंट बहुत बढ़िया नहीं हो रहा। कल को कानून बनेगा, स्पेशल कोर्ट तो बनेंगे। जी। स्पेशल कोर्ट में जज कौन बैठेंगे? जो आज बैठे हुए हैं स्पेशल शायद कोर्ट वही कॉलर भी यही कहना चाह रहे थे, जो ऑलरेडी कानून है अगर स्टेट के ऊपर जो लागू होता है वही नहीं अच्छी तरह से आप उसको कैरी ऑन कर पा रहे हैं, और आपका जो ध्यान है वो एक नई बॉडी की तरफ लगा हुआ है। The most important thing that we have to do is, it's not sufficient to punish the corrupt. करप्शन में जो इंडल्ज करते हैं उनको पनिश करना हमारा एक गोल नहीं होना चाहिए। हमारा गोल होना चाहिए करप्शन को इररेलेवेंट बना देना। जी। अगर मुझे अपने जमाबंदी, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, ट्रैफिक चलान बिना पैसे दिए इजीली मिल रहे हैं, यूजिंग टेक्नोलॉजी और यूजिंग व्हाटएवर मींस पॉसिबल, तो मैं पैसे नहीं दूंगा। So what is necessary is to incentivize honesty. Absolutely. Not to punish the corrupt. जी। I'll just add one word to what he said. He is absolutely right. You see, when you over-regulate, when you have too many rules, Right. you are already struggling with so many rules, and for a simple application, wherever you have to this thing. For example, I recently shifted house, and all that I did was to write to my banks and all the other agencies which I am dealing with, that I have shifted from X to Y place, etc. This is for your information. So they said, we don't accept it, you give us proof of residence. Absolutely. Now for proof of residence, such a complicated procedure.
Right. I go to the court and file an affidavit there, etc., and say that please and this. So we have created so many rules and regulations, and if you have the kind of Lokpal which is being emphasized, on one side people are struggling with rules and regulations, then you struggle with the machinery of the Lokpal after that. Absolutely. हमारे पास यहाँ पे कॉलर जुड़े हैं जी, आप अपना नाम बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं राजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ बादशाहपुर पटियाला से। हाँ जी, आप क्या कहेंगे? मैं पूछना चाहता है, जैसे अपने अन्ना जी जिस पर अड़े हुए हैं, A, B, C, D सभी कैटेगरी के ऑफिसर्स चाहिए लोकपाल के अंदर जी। अगर ऐसे सभी आ जाएंगे तो जैसे हाई कोर्ट में 10-10 साल केस चलते रहते हैं, ऐसे लोकपाल में चलते रहेंगे जी। अगर सिर्फ A और B आते हैं, जैसे मान लो भी SSP और DC ईमानदार आ जाते हैं, तो नीचे थानेदार है या सिपाही है, उनका मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता, वो भी पैसा खा लेंगे कहीं जी। और दूसरी बात, जैसे प्राइम मिनिस्टर पर बोल रहे हैं वो जरूर अंदर आना चाहिए। जैसे मान लो कल किसी से वॉर होती किसी फॉरेन कंट्री से, प्राइम मिनिस्टर कोई भी फैसला करना पड़ सकता है। हाँ, तो वो अगर ऑलरेडी इसके साथ जूझ रहे हो तो वो फैसला तुरंत नहीं ले सकते हैं। सौरभ, आप इनकी बात का जवाब देंगे? देखिए, पहले तो एक बात हमें समझनी चाहिए कि ये जन लोकपाल बिल है क्या और लोकपाल बिल है क्या। इस लोकतंत्र में जहां 70% जो लोग बेरोजगारी भूखमरी से मर रहे हैं, आपको उन लोगों से पूछना चाहिए। वो शायद आज भी हाईटेक नहीं होंगे वो लोग, और उन लोगों को आज की डेट में भी 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है। आपने शायद उड़ीसा में भूखमरी की बात सुनी होगी, स्टारवेशन की बात ये चल रही है कि ये जो पैसा है स्विस बैंक में जो पड़ा है, आज तक उसके बारे में कोई नहीं बात आ पा रही है। क्यों नहीं आ पा रही है? क्योंकि यहां भ्रष्टाचार में राजनेताओं से लेकर ब्यूरोक्रेट से लेकर एक आम आदमी, एक बिजनेसमैन, सब लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं। और हाँ जी, उनका ये कहना है कि चारों कैटेगरीज को इसके अंडर लेके आने से जो ऑलरेडी एक तो कोर्ट्स में इतने लंबे लंबे केसेस चलते हैं, तो वो एक तो उनकी भरमार बढ़ेगी, उनका नंबर ज्यादा बढ़ेगा और फिर वो इतने लंबे केसेस आएंगे। अगर सिर्फ A और B को इसमें रखा जाए, C और D को इससे बाहर रखा जाए, तो अगर ऊपर जो बैठे लोग हैं वो करप्ट नहीं होंगे तो अपने आप जो नीचे की करप्शन है उसको काबू में लाया जा सकता है। देखिए, सबका अपना अपना एक मत रहता है। ये हमारे जो कॉलर का फोन आया, ये उनका मत है कि B, C, D, A कैटेगरीज के जो आप बना रहे हैं जी। शायद वो जन लोकपाल बिल उनका है, अन्ना और अन्ना जी की टीम के ये मुद्दा होगा। लेकिन क्या लोकपाल बिल में ये मुद्दा आया है? पहले उसके बारे में जानकारी लोगों को होनी चाहिए। ये ऐसा कोई भी कैटेगराइज नहीं किया गया उसको। अभी तो सिर्फ लोकायुक्त में फंसी हुई बात है, सेक्शन 64 की बात चल रही है, 253 में उसको लेकर आगे हैं, आर्टिकल 252 की बात वो नहीं कर रहे हैं। यहां पर यही तो मैं समझाना चाहता हूं अपने देश के नागरिकों को कि यहां पर चल क्या रहा है। आप एक तरफ जो बातें सुन रहे हैं वो सुन रहे हैं जो अन्ना हजारे की टीम बोल रही है जी। क्या वो सारा का सारा बिल क्या आपके वहां गया है? वहां जब प्रधानमंत्री के पास जो पास हो रहा है, जो वहां पर पार्लियामेंट में पास हो रहा है, क्या वो बिल पास हो रहा है? बिल्कुल नहीं। वो बिल्कुल अलग है जिसमें इन मुद्दों के बारे में बात भी नहीं की जा रही है, जिन मुद्दों के बारे में कॉलर यहां बोल रहे हैं। जिन मुद्दों की वो बात कर रहे हैं वो सिर्फ सरकार एक आंख में आपके चश्मा डालना चाहती है कि लोकपाल बिल पास हो गया है और उसमें कुछ भी नहीं है। उससे पहले कॉलर ने बोला था, शायद आपने सुनी नहीं बात, उन्होंने बोला कि वो जो डीआईजी साहब है उनके पास पावर्स नहीं है। यस, ही इज राइट, पावर्स है ही नहीं है। आपके हिसाब से सर लोकपाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए, मैं सीधी बात है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकपाल क्या, इससे बड़े से बड़े और कड़े से कड़े हमें रूल्स और रेगुलेशंस और लॉ होने चाहिए। मगर ऑलरेडी जो हमारे पास कानून है इन चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए, हम उन्हीं को स्ट्रेंथन क्यों नहीं करते हैं? देखिए, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात की गई यहां पर इस मंच पर, बात बिल्कुल ठीक की गई, लेकिन लोकपाल की बात क्यों आई है, लोकायुक्त की बात क्यों आई है? इससे पता लगता है कि जो हमें मिलना चाहिए इंसाफ, वो हमें जल्दी से नहीं मिल पाता है। आज करप्शन में कितने लोग फंसे होते हैं, बस उनमें ये होता है कि नोट पे अगर उनकी उंगलियां नजर आ गई हैं, नोटों में उनके नजर आ गया, फिंगरप्रिंट नजर आ गया, तो उस पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में फंस सकते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, मिनिस्टर से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके, उन लोगों को कौन पकड़ेगा? उसके लिए लोकायुक्त को बनाया गया था, और लोकायुक्त कई जगह हमारी स्टेट गवर्नमेंट में चला है, उसमें से एक बिहार, गुजरात, ये सब जो बीजेपी की शासित जो केंद्र हमारे हैं, उनमें सब जगह ये पास हो चुका हुआ है। यहाँ पे जो हरप्रीत है वो शायद अपनी जो राय है वो अलग रखते हैं। कॉलर का क्वेश्चन था कि क्या सारी किस्म के जो उनसे एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको बीच में ले आएंगे तो उससे डिलेज बढ़ेंगी? बिल्कुल बढ़ेंगी। सवाल हमारे सामने ये है कि हमारे पास 4 किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, ABCD। पहले क्लास 1, 2, 3, 4 एम्प्लॉयज़ कहते थे। अब हमने शुरुआत करनी है। मान लीजिए लोकपाल लेके आना बहुत ही ज़रूरी हो गया है, सारे लोग कह रहे हैं लोकपाल लेके आना है, माई फीलिंग्स डोंट मैटर।
लोकपाल लेके आना है। नाउ वन ऑल्टरनेटिव इज कि हम तब तक बैठेंगे जब तक बिल्कुल परफेक्ट बिल ना बन जाए, परफेक्ट एक्ट ना बन जाए, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, विच इज व्हाट इज हैपनिंग। भूख लगी हुई है, लेकिन जब सबसे बढ़िया खाना जब तक सामने नहीं आएगा तब तक मैं नहीं खाऊंगा। अदर ऑप्शन इज जो मिल रहा है वो तो खाओ, उसको बाद में चेंज कर लेंगे। हो सकता है नेक्स्ट जनरल इलेक्शन में बीजेपी आ जाए, दे आर वेरी वेरी एग्रेसिव राइट नाउ। नेक्स्ट टाइम आ जाओगे आप, उसको ठीक कर लेना भाई, मगर जो मिल रहा है वो तो लो। बात तो वही आ गई कि अभी जो एक्सरसाइज हो रही है उस पे ही ऑलरेडी इतना ज्यादा जो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो लग रही है। उसी एक्सरसाइज को अगर हम दोबारा रिपीट करेंगे तो फिर तो इन्हीं चक्रों में रह जाएंगे। अरे मुद्दे तो चाहिए होते हैं पॉलिटिशियंस को, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बिजी रखने के लिए कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए होता है। ये मुद्दा नहीं होगा, कोई और मुद्दा आ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, कोई तीसरा मुद्दा आ जाएगा। मुद्दे तो हमेशा चाहिए होते हैं। प्रिवेंशन all at the expense of the taxpayer, right? All at our own expense. We are paying for it and we deserve the government that we get. That's what they say. We deserve the government that we get. हमने इनको चुना है. We have to put up with them. Absolutely. जी मिस्टर What is not being understood? जो लोकपाल अभी जो बिल पास कर रहे हैं, जो जन लोकपाल की बात हो रही है, जी क्या फंक्शंस क्या है? They are not going to declare anybody as guilty. जी उनका हक ही नहीं है। They can't. वो कोर्ट में जाएगा, स्पेशल कोर्ट्स है, ट्रायल होगी, जी स्पेशल कोर्ट फाइनली इट इज अ जज हु मे बी 5 years 10 years डाउन द लाइन डिपेंडिंग, वो बताएगा कि आदमी गिल्टी है कि नहीं। व्हाट विल लोकपाल डू? लोकपाल विल ओनली अक्यूज यू, इन्वेस्टिगेट, अक्यूज यू, एंड यू व्हाट डज ही डू? ही सेंड्स यू टू द कोर्ट। राइट। कोर्ट्स देख लीजिए, वैसे ही कोर्ट होंगे, स्पेशल कोर्ट्स हैं, सेम काइंड ऑफ जजेस, सेम काइंड ऑफ प्रोसीजर्स। Procedures are not being simplified, same procedures, same everything, so on. कोर्ट में उतना ही टाइम लगेगा, ज्यादा लगेगा, क्या होगा? I really don't know what is going to be. इसका मतलब ये है कि जो रूट है वो थोड़ा और लंबा कर दिया जाएगा। रूट लंबा कर दिया, बॉटलनेक क्रिएट कर दिया, और वेरी इंटरेस्टिंगली अब ऐसा होगा कि मैंने किसी को इल्जाम लगाया आप करप्ट हैं, लोकपाल के पास जाएगा, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, लोकपाल करेगी, स्पेशल कोर्ट करेगी, उसको फाइनली जज एक्विट कर देगा, मैं जज के अगेंस्ट कंप्लेंट कर दूंगा, जज जौन सा है ये करप्ट है, फिर वो जज जौन सा है सेम प्रोसेस में शुरू हो जाएगा। जी इट्स नेवर एंडिंग। चलिए यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी आपका नाम क्या और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हेलो। हेलो। हाँ जी, थोड़ा नाम की कितों बोल रहे हो? ये पूरी है जी मेरा नाम। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कमाल बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल, कल को लोकपाल, मान लो लोकपाल बन गया है, इम्प्लीमेंट भी हो जाता है जी, और इससे भी कुछ नहीं होता, तो फिर वही बात होगी ना, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, कीड़ा तो एक कतरा खून भी ना निकला, फिर कहाँ जाएंगे? जी जी बिल्कुल। हरप्रीत, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपको लगता है कि ये बिल पास होगा? नहीं होगा, ये बिल पास नहीं होगा, ना इस सेशन में होगा, ना इस पार्लियामेंट में होगा, ना अगली वाली में होगा। हम ये पास करना नहीं चाहते हैं। जो होगा वो ये है कि जुडिशरी बैठेगी और कहेगी जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसको जरा सा सीरियसली इंप्लीमेंट करते हैं। इज दैट द आइडियल केस सिचुएशन? दैट इज नॉट, बट दैट इज व्हाट इज गोइंग टू। मिस्टर बजाज, आपके पास आना है और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है बिफोर आई एंड द डिस्कशन। आपके हिसाब से क्या ये लोकपाल बिल पास होगा या नहीं होगा? इट रियली डजंट मैटर बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन इन एनी वे। ओके, पास करें ना करें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, प्रॉब्ली कंप्लेक्सिटी ऑफ द होल सिस्टम विल गेट मोर कॉम्प्लेक्स। ऑल राइट, राइट। आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल वी हैव इन दिस एडिशन ऑफ प्राइम। टिल वी मीट अगेन, इट्स गुड लक एंड गुड बाय।